Hello students, now I am going to continue with the chapter Trigonometry part 2 of 11th Science. Exercise 3.3, question number 3, example number 6. So the question is that is prove the following. मतलब हमें LHS equals to RHS prove करना है. In previous lecture we see the first 5 examples of this question number 3 of exercise 3.3. So the question is cos x plus sin x upon cos x minus sin x minus cos x minus sin x upon cos x plus sin x is equals to 2 tan 2x. तो पहले हमने LHS ले लिया है and now I am taking the LCM of this one, so the product of these two is in the denominator and taking cross, so we'll get cos x plus sin x bracket square minus cos x minus sin x bracket square. So after that we are going to open this bracket using the formula a plus b bracket square is equals to a square plus 2ab plus b square. तो यहाँ पे आ जाएगा cos square x. मैंने जो लास्ट वाला टर्म था a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का वो मैंने सेकेंड में ले लिया sin square x and 2 sin x into cos x. This is the expansion of this bracket and the minus sign is as it is. Again here we apply the formula of a minus b bracket square, that is a square minus 2ab plus b square. तो a square मैंने पहले लिख दिया, b square भी लिख दिया और minus 2 sin x into cos x मैंने यहाँ पे लिखा है. And the expansion, so see the carefully these two brackets, cos x plus sin x and cos x minus sin x. So it is the expansion, that is the formula a square minus b square, that is a plus b a minus b. So we can see a plus b and a minus b, which is the expansion of a square minus b square. तो हम ऐसे लिख सकते हैं, that is cos square x minus sin square x. Now just I am going to open this bracket because इस bracket के outside में minus sign है, तो हर एक का sign यहाँ पे change हो जाएगा. बाकी 3 टर्म्स as it is we have to write down. 1 2 3 टर्म्स मैंने ऐसे ही लिखे. Now this cos square x becomes minus, this plus sin square x become minus sin square x and minus minus plus 2 sin x into cos x, and you know this is the formula of cos 2x. So यहाँ पे plus cos square x cancel with this minus and plus sin square x cancel with this minus sin square x. तो यहाँ पे हमें 2 sin x into cos x and 2 sin x into cos x दो बार ये टर्म मिली है. सो 2 प्लस 2, तो यहाँ पे हमें दो बार ये मिला है, तो हम क्या करते हैं 4 sin x इंटू कॉस एक्स लिखने से हम क्या करेंगे 2 उसका जो है वो एक बाहर में रखेंगे एंड एक 2 को हम अंदर ले लेंगे. सो 2 2 ज़ा 4 sin x इंटू कॉस एक्स. ये मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि जो 2 sin x इंटू कॉस एक्स मैंने लिखा है इसका फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ sin 2x. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज़ 2 इंटू sin 2x अपॉन cos 2x. ये क्यों किया, क्योंकि हमारा जो RHS है उसमें हमें क्या चाहिए, tan 2x चाहिए और tan 2x मतलब sin 2x अपॉन cos 2x. तो sin 2x अपॉन cos 2x हमें मिला, 2 आउटसाइड ऐसे ही है एंड सो आवर आंसर इज tan 2x, that is nothing but RHS. so LHS equals to RHS. तो जब हम ये इस टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं प्रूव दैट वाले, तो आपको पूरा ध्यान हमारे RHS पे रहना चाहिए कि RHS में मुझे क्या चाहिए, उसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन जो कन्वर्जन्स है वो आपको यहाँ पे करना है. नाउ दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, बहुत बार ये पूछा जाता है. तो क्या दिया है पहले आप देख लो. सो √2 plus again √2 plus again √2 plus 2 cos 8x and हमें प्रूव करना है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, 2 cos x आना चाहिए. तो ये एग्जांपल सॉल्व करने के लिए हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज़ 1 प्लस cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos square x. अभी ये कैसे आया आपको ये भी मैं पहले बताती हूँ. तो हमने cos 2x के फॉर्मूले सीखे थे, मैं फिर से यहाँ पे लिखती हूँ, that is the cos 2x is equals to 2 cos square x minus 1. तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है. सो मैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताने जा रही हूँ. तो ये जो 1 है तो वो मैंने यहाँ पे ले लिया, तो मुझे क्या मिला 1 प्लस cos 2x is equals to 2 cos square x. तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है. सो 1 प्लस cos 2x is equals to 2 cos square x. अभी इसको थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना है कि अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे सिंगल x होता है, मतलब इसका हाफ यहाँ पे होता है. तो 1 प्लस cos 2x है तो उसका आंसर क्या आता है 2 cos square x.
तो 2 के बदले यहाँ पे अगर 8 आ जाता है, दैट इज़ 1 प्लस कॉस 8x, तो वो कैसे होगा फॉर्मूला? तो इसका हाफ हम ले लेंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर 4x। तो बाय कंपेयरिंग आपको ये फॉर्मूले ढूंढने हैं। अगर यहाँ पे 1 प्लस कॉस 4x आता है तो 4 का हाफ यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज़ 2x। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सो दिस 3 फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग दिस एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो LHS मैंने यहाँ पे ले लिया, यही जो टर्म है वो मैंने यहाँ पे ले ली है। अभी इस टर्म में से मैंने 2 को कॉमन ले लिया है, तो 2, बाकी सब ये दोनों एज इट इज़ है। सो 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे cos 8x आ जाएगा। सो 1 प्लस cos 8x। अब भी मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया कि 1 प्लस cos 8x, 1 प्लस cos 8x, उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर 4x। तो ये जो ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है, इसके बदले में हम क्या लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर 4x। तो देखो ये दोनों ऐसे ही आ जाएंगे, ये 2 एज इट इज़, और इसके लिए मैंने क्या लिखा? 2 cos स्क्वायर 4x। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 2 जार क्या हो जाएगा? 4। ये टर्म मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखती हूँ क्योंकि मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, ये ऐसा आया है, दैट इज़ 4 cos स्क्वायर 4x। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2, यस 2, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा और हमें क्या मिलेगा? cos 4x, 2 cos 4x। तो ये यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा है 2 cos 4x। अब ये देखो, ये पहला वाला √2 ऐसे ही है, प्लस अभी ये √2 हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया है, तो ये 2 प्लस 2 cos 4x ऐसे ही आ रहा है। अभी जो स्टार्ट में हमने किया था यहाँ पे, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। अभी 2 प्लस 2 cos 4x है, तो इसमें से हमने 2 को कॉमन ले लिया, तो √2 एज इट इज़, प्लस इसमें से मैंने 2 को कॉमन लिया, तो इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा? 1 प्लस cos 4x आ जाएगा। तो 1 प्लस cos 4x को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अभी फॉर्मूला इसका भी हमने बनाया है। तो 1 प्लस cos 4x के लिए हमें क्या मिला है? 2 cos स्क्वायर 2x। कैसे आया मैंने आपको ये कंपेयर करके बताया है। तो 1 प्लस cos 4x के बदले हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 2x। तो इसके बदले हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 2x। तो अभी ये सॉल्व करके 2 2 ज़ा 4 cos स्क्वायर, अभी रूट में देखो जैसे मैंने ऊपर लिखा है वैसा मैं इसका भी लिखने जा रही हूँ। सो 2 2 ज़ा 4 cos स्क्वायर 2x। अभी हम क्या करेंगे? इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद हमें क्या मिलता है? इसका मिला 2, स्क्वायर रूट हट गया तो हमें मिला cos 2x। तो 2 cos 2x हमें यहाँ पे मिल गया। तो देखो ये पहले वाला √2 प्लस ये टोटल हट गया तो हमें क्या मिल गया? 2 cos 2x। अभी इसमें से भी हमें 2 को कॉमन लेना है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, सो इन ब्रैकेट वी गेट 1 प्लस cos 2x। अब ये तो हमारा फॉर्मूला है जिसका आंसर हमने पहले से ही लिखा है। सो फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस cos 2x। इसके लिए हम क्या लिखते हैं? 2 cos स्क्वायर x। तो इसके लिए भी हम वही लिखेंगे, तो 2 cos स्क्वायर x मैंने इसके लिए यहाँ पे लिख दिया। तो इसका आंसर क्या आता है आपको पता है, तो फिर से मैं यहाँ पे लिखती हूँ, दैट इज़ 2, देखो आप 2 2 ज़ा 4 cos स्क्वायर x। अभी इसका हम अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 4 का स्क्वायर रूट 2, और इसका भी स्क्वायर रूट और रूट हट जाएगा, हमें मिलेगा cos x। तो वही आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है 2 cos x, दैट इज़ नथिंग बट RHS, एंड सो LHS इक्वल्स टू RHS। तो सिर्फ मैंने ये 3 फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ किए हैं, इसी 3 फॉर्मूले से हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व किया है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सो यू हैव टू सॉल्व इट केयरफुली। आफ्टर दैट एग्जाम्पल नंबर 8। अब 8th वाला एग्जाम्पल भी उसी तरह से हमें सॉल्व करना है जैसे हमने 7th वाला किया था। दोनों नियर बाय सेम एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल क्या है पहले आप देख लो। 16 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा इंटू cos 8 थीटा इज इक्वल्स टू वी हैव टू शो sin 16 थीटा। तो देखो बहुत लंबा एग्जाम्पल है और सबके बीच में इंटू साइन है। तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो LHS मैंने अभी यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन आपको एग्जाम्पल में इसको लिखना है LHS। तो हम यहाँ पे LHS सॉल्व कर रहे हैं। मैंने LHS को नहीं लिखा है, डायरेक्ट मैंने फर्स्ट स्टेप की है।
तो 16 जो है इसको मैंने स्प्लिट अप कर दिया, दैट इज़ 8 इंटू 2, एंड ये साइन थीटा एंड कॉस थीटा मैंने यहाँ पे लिख दिया और उसको ब्रैकेट बना दिया। अभी क्यों बनाया आपको समझ में आया होगा, बिकॉज दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा एंड रिमेनिंग टर्म्स आई राइट इट एज इट इज़। सो कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, कॉस 8 थीटा एज इट इज़। और ये सब सॉल्व करके हमें आंसर क्या चाहिए, साइन 16 थीटा। तो अब हम देखते हैं कि इसका आंसर हमें मिला साइन 2 थीटा, ये बाहर का 8 है वो ऐसे ही रहेगा, एंड द रिमेनिंग टर्म्स आर एज इट इज़, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, कॉस 8 थीटा। अभी देखते हैं कि ये 2 थीटा, ये 2 थीटा है, तो ये 8 को हम फिर से स्प्लिट अप करेंगे जैसे हमने 16 को किया था। तो स्प्लिटिंग क्या आ जाएगा इसका, 4 इंटू 2, तो 4 2 ज़ार 8। तो ये साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा मैंने साथ में लिखा है, एंड द रिमेनिंग टर्म्स आर एज इट इज़। 2 टर्म्स यहाँ पे बैलेंस है। अभी अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 साइन, इसको हम थीटा ही कंसिडर करेंगे। अभी आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा कंपैरिजन करना है। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो फॉर्मूले में उसका हाफ एंगल होता है, मतलब अगर हम यहाँ पे साइन 4 थीटा लिखते हैं तो ये फॉर्मूला कैसे होगा, दैट इज़ 2 साइन, येस टेक द हाफ ऑफ 4 थीटा, दैट इज़ 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। ठीक है, अगर यहाँ पे साइन 8 थीटा आ जाता है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन, येस 8 का हाफ, दैट इज़ 4 थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसी तरह से हम कंपेयर करके बाकी के फॉर्मूलेज भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी तक हम यहाँ पे आए थे, दैट इज साइन 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, एंड इसका जो फॉर्मूला है वो हमने अभी यहाँ पे डिराइव किया, किसका है वो, साइन 4 थीटा का है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 4 थीटा, दिस 4 एज इट इज़, साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। तो यहाँ पे हम फिर से हमें वो दोनों टर्म्स से मिले, 4 थीटा 4 थीटा, तो हम इस 4 को स्प्लिट अप करेंगे, दैट इज़ 2 2s आर 4। तो यहाँ पे हमने एक 2 को बाहर लिखा है और एक 2 को अंदर ले लिया, दैट इज़ साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा एंड द रिमेनिंग टर्म इज़ 8 थीटा। तो 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, देखो मैंने फॉर्मूला पहले से बना के रखा है। सो व्हाट इज़ द आंसर, दैट इज़ साइन 8 थीटा, इसका डबल हम लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 8 थीटा। अब ये 2 आउटसाइड का बाहर है ही, 8 थीटा इंटू ये रिमेनिंग वाला टर्म कॉस 8 थीटा। अभी ये इसका आंसर क्या होगा वो आपको पहले से मालूम होना चाहिए। तो ये 8 थीटा का जो हम लिख रहे हैं इसका डबल वाला एंगल वो रहता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका डबल, दैट इज 16 थीटा। तो साइन 16 थीटा इज नथिंग बट द RHS। मतलब मैंने जैसे ये बनाया था वैसे हम 16 का भी बना सकते हैं। तो 16 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन 8 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। सो दैट इज़ नथिंग बट 2 साइन 8 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा का आंसर क्या रहता है, साइन 16 थीटा। तो वही आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है। सो दिस इज़ नथिंग बट RHS एंड LHS इक्वल्स टू RHS। नाउ वी सी द एग्जाम्पल नंबर 9। तो 9 में हमने क्या दिया है एग्जाम्पल में वो हम देखते हैं। साइन 3x अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस 3x अपॉन साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2 कॉट 3x। तो यहाँ पर भी हम एलसीएम ले लेंगे। सो टेकिंग क्रॉस, तो मैंने कॉस वाला आंसर पहले लिखा है इंस्टेड ऑफ साइन, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है। सो कॉस 3x इंटू कॉस एक्स एंड आफ्टर मैंने लिखा है साइन 3x इंटू साइन एक्स। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस a minus b, that is cos a into cos b plus sin a into sin b. So using the formula of cos a minus b, what we get here, that is cos 3x minus 3x minus x, sorry 3x minus x. So यहाँ पे हमें क्या मिलता है, cos 2x। तो cos 2x अपॉन साइन x इंटू cos x। तो अभी हम देख सकते हैं कि हमें एग्जाम्पल में क्या चाहिए, cot 3x हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम actually it's not 3, it's 2, it's cot 2x, there should be a printing mistake। तो 2 cot 2x हमें आंसर चाहिए। तो यहाँ पे cos 2x तो हमें पहले से मिला है,
अगर हमें कॉट चाहिए तो कॉस अपॉन साइन आना चाहिए। तो यहाँ पे भी साइन 2x आ सकता है। अगर यहाँ पे 2 होता है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 cos 2x अपॉन साइन x इंटू 2 sin x इंटू कॉस x। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2x। तो 2 cos 2x अपॉन साइन 2x, so 2 cot 2x, so the answer is that is 2 cot 2x, that is nothing but our RHS, and so LHS equals to RHS। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये एग्जाम्पल सॉल्व करते समय आपको थोड़ा ध्यान आपके RHS के ऊपर भी चाहिए। नाउ वी गोइंग टू सी द एग्जाम्पल नंबर 10। So see the example number 10. Before going to start with this example number 10, just see the हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल कैसे होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता दी हूँ। सो साइन 2x इज इक्वल टू, यू नो द फॉर्मूला दैट इज 2 sin x इंटू कॉस x। अगर इसका हाफ एंगल हमें लेना है तो क्या होता है, 2x का हम हाफ लिखते हैं दैट इज x, और ये सिंगल वाले x है उसका हाफ होता है, सो वी कैन राइट हियर दैट इज x/2 एंड x/2। सिमिलरली cos 2x का फॉर्मूला है cos square x माइनस साइन स्क्वायर x। अगर हम इसका हाफ एंगल लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, cos, इंस्टेड ऑफ राइटिंग cos 2x में राइट हियर cos x। मैंने इसका हाफ ले लिया तो यहाँ पे भी x का हाफ लेते हैं यहाँ, सो cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। सिर्फ एंगल का हाफ लेते हैं, बाकी कुछ नहीं हमें करना है। तो सी द एग्जाम्पल नंबर 10, दैट इज cos x अपॉन 1 प्लस साइन x इज इक्वल टू cot x/2 माइनस 1 अपॉन cot x/2 प्लस 1। तो ये जो है cos x, तो cos x का अभी मैंने जो हाफ एंगल फॉर्मूला बताया था दैट इज cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, वो हम यहाँ पे ले लेंगे। क्योंकि cos x का ऐसा ही तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में आना चाहिए कि cos 2x का हाफ एंगल हमने यहाँ पे यूज़ किया है अपॉन, तो ये जो 1 है, सो यू वेरी वेल नो अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दैट इज साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम 1 की वैल्यू यही पुट करेंगे दैट इज साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। बट सब एग्जाम्पल में हम हाफ एंगल ले रहे हैं तो यहाँ पर भी हम हाफ एंगल ले सकते हैं। इस आइडेंटिटी का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, तो मैंने यहाँ पर भी x/2 और x/2 ले लिया। एंड आफ्टर दैट वी गोइंग टू यूज़ द साइन x का हाफ एंगल फॉर्मूला। तो साइन 2x का यही है, तो साइन x का क्या आता है मैंने अभी आपको बताया था दैट इज 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे दिखता है, तो a प्लस बी एंड a माइनस बी हम यहाँ पे ले लेंगे अपॉन दिस cos x/2। ये जो हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो हमें मिलेगा कि ये जो टोटल डिनोमिनेटर है इट इज़ द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ cos x/2 प्लस sin x/2 ब्रैकेट स्क्वायर। ये जो टोटल है इट इज़ नथिंग बट द cos x/2 प्लस sin x/2 का स्क्वायर है। तो हम इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, तो ये एक ब्रैकेट इस ब्रैकेट को कैंसिल होगा। सो हियर वी गेट cos x/2 माइनस sin x/2 अपॉन cos x/2 प्लस sin x/2। लेकिन हमारे एग्जाम्पल में हमें चाहिए यहाँ पे cot, तो cot कब आता है, cos को हम अगर sin से डिवाइड करते हैं तभी आता है। तो यहाँ पे हमें अगर cot चाहिए तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin x/2। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin x/2। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा cot x/2 माइनस 1 अपॉन यहाँ पर भी cot x/2 प्लस 1, एंड दैट इज नथिंग बट द RHS, and so LHS equals to RHS. After that we start with the example number 11. So example number 11, that is tan theta by 2 plus cot theta by 2 upon cot theta by 2 minus tan theta by 2 is equals to sec theta. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, all the terms we going to write in the sin and cos form. So tan x by 2 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, that is sin x by 2 upon cos x by 2 प्लस cot को लिख सकते हैं cos x by 2 upon sin x by 2, नॉट x/2, इट इज़ थीटा बाई 2। अगेन cot को हम लिख सकते हैं इज cos थीटा बाई 2 अपॉन sin थीटा बाई 2 माइनस अगेन वी हैव टू पुट डाउन द फॉर्मूला ऑफ tan दैट इज sin अपॉन cos। आफ्टर दैट आई एम टेकिंग द LCM, सो द LCM इज sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। दोनों डिनोमिनेटर्स का जो LCM है वो सेम होगा, एंड वी टेकिंग द क्रॉस, सो sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड इन द डिनोमिनेटर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। सो द डिनोमिनेटर विल गेट कैंसिल, एंड यहाँ पे हमें मिलता है sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2,
So it is the nothing but the trigonometric identity. So the answer is 1. So 1 upon यहाँ पे cos square theta by 2 minus sin square theta by 2. तो अभी हमने यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा था, दैट इज cos square theta by 2 minus sin square theta by 2 इज नथिंग बट cos x. तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा. एंड 1 अपॉन cos मतलब sec थीटा, दैट इज नथिंग बट RHS, and so LHS equals to RHS. So this is all about the first 11 examples of question number 3 of exercise 3.3, and the remaining examples we will see in the next lecture. Thank you.